Happened. Second. So we will be waiting for more users, but then it's okay. We will carry on. Rest all can go through the recording. It's their loss. Okay. Cool. Please let me know whether you are able to see my screen or not. Right. So I'm Neha Kapoor and I'm the community manager at SugarFit. It's been like almost 19 years working in this field, and from past 5 years, I'm associated with SugarFit. Joined here as a health coach, and now continuing handling the entire community base. So we have almost 170 coaches, and they have their own 170 warrior group. So I'm handling that, helping with the diabetes reversal, handling all SugarFit's VIP users, and assisting them with a lot of other projects. But yeah, that's about me. And now, in today's session, I will be helping you in understanding how food works and what food actually helps in GLP process. So it's a simple sugar fit playbook which I'm going to share with you, especially to understand that what exactly is the GLP, why we need to be way more careful and mindful about the GLP, right? I think one second, one second. I have to reshare this. Okay. Yeah. Okay. So number one, when we talk about the GLP, what it does, we all know by now that GLP helps in slowing the गैस्ट्रिक एम्पटिंग मीन्स आपके जो पेट में खाना है वो पेट में काफी देर तक रखता है ताकि धीरे धीरे रिलीज करे उसमें से जितना भी ग्लूकोज निकल रहा है उसको ब्रेक डाउन करके सो दैट योर एनर्जी इज मेंटेन थ्रू आउट द डे instead of quickly releasing the glucose and increasing your energy levels, but then again you will feel the sharp drop or dip in your energy levels. So GLP actually helps in delaying the gastric emptying so that you feel full for longer time. It helps in reducing the physical hunger. If you continuously keep on feeling hungry throughout the day, even, if you are doing the day to day chores, whatever the hunger we have, like, it's a natural process of the body that we need the fuel to process our डे टू डे chores and the work, है ना? कहीं पे लगे कि मुझे हिंदी में बोलना है तो प्लीज यू कैन रेस द हैंड्स और लेट मी नो, बट मैं दोनों में ले लूंगी. तो जब आपको बेसिकली हम जब खाना खाते हैं तो हमें इतना खाना चाहिए होता है सो दैट वी कैन सस्टेन द एनर्जी थ्रू आउट द डे. नाउ वी नो वी ऑलरेडी आर obese, we have so much of excess body fat. अब how to use the internal fat storage as a source of energy. तो हम कब ले सकते हैं उसको, जब हम थोड़ा सा कैलोरीज कम करेंगे बट विदाउट compromising with our macros and micros. Now, how we do that? It's with the help of GLP we are doing over here. And in that scenario, GLP suppresses your appetite. तो आप जब दो रोटी खाते थे, यहाँ पे आपको एक रोटी में ही satisfaction मिल जाएगा because food will be staying in the gut in your stomach. आपके पेट में ही खाना काफी देर तक रहता है. तो इससे क्या होता है, एक तो क्रेविंग बंद हो जाती है, थोड़े में ही पेट भर जाता है. नेक्स्ट इज दैट कि वॉट एवर द फैट इज देयर वो यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो कभी भी जब हमारे को खाना नहीं मिलता, हम बहुत देर तक नहीं खाते, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे इंटरनल स्टोर्स जो होते हैं फैट के उनको ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी ग्लूकोज रिलीज कर देती है. अगेन हमारे लिवर में भी बहुत सारा ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो वहां पे मसल्स को ब्रेक करके एनर्जी देती है. बट देन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट कि अगर हम अच्छे से प्रोटीन्स खा रहे हैं तो हम अपना जो मसल मास है जो कि बहुत मुश्किल से बनता है उसको प्रिजर्व कर पाएंगे. राइट. तो आई थिंक ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बट जितने लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया ये सेशन, आई जस्ट वांट टू गिव देम अ वॉक थ्रू एंड मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई जीएलपी वर्क्स. नाउ व्हाट जीएलपी कैन नॉट डू. हमारा एपेटाइट कम हो गया, अब हम खाना तो खा रहे हैं, कैलोरीज भी ले रहे हैं, but from where those calories are coming and whether those calories are meeting up your macros or micros requirement is a big question.
तो हमें भूख नहीं लग रही है, हमने क्या करा, थोड़ा सा पोहा खा लिया, उपमा खा लिया या एक पराठा खा लिया, तो हमें लग रहा है वी आर ईटिंग लेस, बट देन व्हाट अबाउट द प्रोटीन्स, व्हाट अबाउट द फाइबर? नहीं, अगर ध्यान देंगे तो हेयर फॉल होगा, मसल लॉस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। सो वी नीड टू बी केयरफुल दैट कि हम प्रोटीन ज़्यादा ध्यान से दें, और ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें इस चीज़ की अवेयरनेस हो। So we need to protect and preserve our muscle mass. We need to ensure we are meeting up the macros and micros so that our skin won't sag, our hair won't fall. तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आपको दिखेंगे जिन्होंने जीएलपी, मुंजारो या ओज़ेम्पिक लिया, बट दे हैव नॉट टेकन केयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दे हैव नॉट टेकन केयर इनटू द कंसिडरेशन अबाउट द प्रोटीन्स, एंड ड्यू टू विच पूरा स्किन रिंकल हो गया, पिचक गया, फेस अजीब से बीमार लगने लग गए इंस्टेड ऑफ लुकिंग more fitter and healthier, right? So what mistakes we have to avoid is कभी भी proteins जो कि दाल से मिलता है, छोले, राजमा, चना, आपका सोयाबीन, पनीर, टोफू, और बेसन है, मूंगफली है, ये सब आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं, प्लस एनिमल सोर्सेस हैं जैसे हमारा एग, चिकन, प्रॉन, फिश। दीज आर ऑल प्रोटीन सोर्सेस। ये हमें किसी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कितना चाहिए? वी नीड 1 to 1.5 grams per kg ideal body weight. If your body weight is 90 kgs, you need at least 90 grams of proteins in a day, or at least 110 grams. 1 ग्राम तो एटलीस्ट हमें लेके चलना है, धीरे धीरे वी शुड इंक्रीज। एक साथ इंक्रीज कर देंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, इनडाइजेशन होगा, बॉडी उतना एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, राइट? तो धीरे धीरे करना है, क्योंकि अगर हमने प्रोटीन्स का ध्यान नहीं दिया तो मसल लॉस बहुत फास्ट होगा, आपका हेयर लॉस बहुत जल्दी जल्दी होगा। दिस वी नीड टू बी अवेयर अबाउट। नेक्स्ट कम्स इज द फियरिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। ये सोचना कि हम जीएलपी पे हैं तो हम रोटी नहीं खाएंगे, हम ग्रेन्स नहीं खाएंगे, राइस नहीं खाएंगे। इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द पोर्शन साइज। कि हम अगर राइस खा रहे हैं, वी विल टेक 1 कटोरी, बट वी विल मेक श्योर वी आर फिलिंग मोर ऑफ द प्लेट विद द वेजिटेबल्स एंड द प्रोटीन्स टू गेट हायर सेटाइटी वैल्यू। अगर आप कम खाएंगे तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी, एंड जो वेट लॉस आना है वो भी नहीं आएगा। अगेन अपने दिमाग में स्ट्रेस होता रहेगा, वी विल कॉन्टिन्यूसली फील लाइक वी आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, एंड द फूड चॉइसेस व्हाट वी आर मेकिंग इज समथिंग नॉट सेटिस्फाइंग अस। तो आपको कहीं भी वो डिससेटिस्फैक्शन या इस ट्रैप में नहीं आना है कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाऊंगा तो मेरा वेट लॉस अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यू शुड ईट बैलेंस्ड मील्स, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू मेक यू लर्न। क्योंकि अभी तो आपने अगर कार्ब्स हटा भी दिया, मान लीजिए आपका वाटर लॉस हो गया, वी गॉट द वेट लॉस, बट फिर थोड़े टाइम बाद इट विल बाउंस बैक, एंड वी डोंट वांट योर वेट टू बाउंस बैक अगेन। वी वांट यू टू मेंटेन दिस वेट इवन आफ्टर सर्टेन टाइम, जब हम वी विल बी कंप्लीटली ऑफ टू जीएलपी, राइट? तो आपके जीएलपी छोड़ने के बाद भी वेट मेंटेन रहना चाहिए, राइट? नाउ, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, अनदर मिस्टेक। हम पानी पीते ही नहीं है। 3 liters to 4 liter वाटर इज मस्ट ऑन जीएलपी, नहीं तो नोशिया होगा, वॉमिटिंग होगा। ये सारे साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं? बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर हाइड्रेशन। इवन कॉन्स्टिपेशन है, या बहुत ज्यादा डिजीनेस लगना, गिडीनेस लगना, फोकस नहीं कर पाना, दिस इज ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। सो वाटर को कम मत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, और वी नीड दिस फॉर द sustainable functioning of our vital organs and our body functioning. Again, water also helps in reducing the inflammation in the body. जितना ज़्यादा inflammation होगा, जितना ज़्यादा oxidative stress होगा, उतना weight loss कम होता है, क्योंकि cortisol और adrenaline जो दो stress hormones हैं, they increase over the period of time when we have too much of stress. So make sure that you are drinking enough water, at least 3 liters, and keep sipping that. So sorry, I have a little bad throat, so I might take a break in between. Okay. So another mistake is drinking calories. जैसे कि हमने क्या करा, शुगर फ्री
कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए या बेवरेजेस ले लिए, राइट, छोटे छोटे स्नैक्स खा लिए, विच शोज कि इट इज एम्प्टी कैलोरीज बट इट इज नॉट, राइट। सो वो सारी चीजें हमें थोड़ा फोकस करनी है, राइट। नेवर गो विद द अंडर ईटिंग, इट्स नॉट राइट। Another aspect is ideal GLP plate. I'm sure 100 of times आपकी कोच ने ये बताया होगा, half of the plate has to be filled with vegetables ताकि constipation ना हो, body alkaline रहे, and we can bring a good satiety level. फाइबर ना आपके मेजर स्टमक का पोर्शन भर देता है, and it ensures that you get a good satiety. Secondly, 1/4 portion of the plate has to be filled with proteins. अब इस प्रोटीन की बात करें तो कहाँ से आ सकता है? इट कैन कम फ्रॉम ईदर पनीर, एग्स, चिकन, या फिर टोफू, या फिर सोया, या सोया चंक्स जो होता है उनसे मिल सकता है। इवन आपका कोई भी वेजिटेरियन सोर्सेज लाइक पल्सेस। I'm sorry. And next 1/4 plate is the smart carbs, means complex carbohydrates. मिलेट्स ले सकते हैं, सूडो ग्रेन्स ले सकते हैं, लाइक किनोआ है, चपाती ले सकते हैं, बट नॉट द फ्लावर्स, स्पेशली आशीर्वाद है या पिल्सबेरी है, ये सारे प्रोसेस्ड है। इनको रिफाइन कर करके इनमें से सारा उन्होंने फाइबर निकाल दिया है ना, वही बचा क्या है? वो मैदा है। इसीलिए इतना ज्यादा वेट गेन होता है। तो व्हाट वी नीड टू फोकस इज, वी हैव लॉट ऑफ यू नो लॉट ऑफ लाइक सॉरी लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट, इन आवर प्लेट। कोई भी एक ग्रेन ले सकते हैं, हम चपाती ले रहे हैं तो वीट की चपाती ले लीजिए, खपली वीट इज मच बेटर नाउडेज। आप उसमें फाइबर होता है। जब हम छोटे थे, आई डोंट नो वेदर यू हैव नोटिस और नॉट, बट जब हम छोटे थे वी यूज्ड टू सी चपातीज ब्राउन कलर की होती थी, उसमें हस्क रहता था, सो दैट यूज्ड टू ऐड द लिटिल बल्क टू द फ्लावर, एंड दैट यूज्ड टू गिव द गुड सैटिस्फैक्शन, एंड एकदम से बॉडी में रिलीज करके ग्लूकोज को हमारे शुगर्स नहीं बढ़ाता था। एंड एज आई सेड, लाइक ऑलवेज मैं बताती भी हूँ, only diabetic people will get the blood sugar spikes. No, everyone gets a blood sugar spikes. The level of spikes are different in every human being to different ingredients. So insulin resistance is quite high when we are obese or when we have metabolic issues. So we need to ensure that we are consuming complex carbohydrate instead of consuming the normal food, especially the refined or the processed food. अगेन ओट्स ले सकते हैं, वी कैन गो विद द ओट्स की रोटी, बाजरे की रोटी है, जवार की रोटी है, दे आर ऑल गुड इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली द मिलेट्स व्हिच हैज more nutrients, trace minerals, and lesser grains, like lesser carbohydrates. Now nuts and seeds उसके साथ में, जैसे हम बोलते हैं कि अभी weight loss के journey पे है, तो you should not apply the ghee. No, you should apply the ghee. Little bit of ghee on the chapati is must, क्योंकि that also adds on the satiety. Especially हम ज्वार की रोटी खा रहे हैं, it's very dry. बाजरे की रोटी खा रहे हैं, it's very dry. अब आपने हल्का सा घी नहीं लगाया उस पे, तो इट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन। तो थोड़ा सा क्वांटिटी में अगर आप घी खाते भी हैं तो कोई नुकसान नहीं करता। यू कैन ऐड ऑन द लिटिल सैलेड में एवोकाडो डाल सकते हैं, एक आध स्लाइस, आप हमस रख सकते हैं। दे ऑल एट द गुड फैट। इवन सैलेड के ऊपर थोड़ा सा सनफ्लावर सीड्स या फ्लैक्स सीड्स स्प्रिंकल कर लीजिए, दे विल गिव यू very good satiety and you will feel satiated. Now अनदर एस्पेक्ट इज दैट कि मसल्स को सेव करना। डेफिनेटली हमने प्रोटीन ले लिया, अब ना वेट लॉस कम्स थ्रू टू डिफरेंट पाथवेज। नंबर वन, कि हमने अपनी कैलोरीज कम कर दिए, वी हैव टेकन अ लो प्रोटीन डाइट, एंड व्हाट इट डज इज इट हेल्प्स यू इन लूजिंग द वेट, बट देन वो वेट लॉस मसल लॉस से आ रहा है, फैट लॉस से आ रहा है, हमें पता नहीं चलता है। अब इस सिनेरियो में आपके वेइंग स्केल पे वेट लॉस ज्यादा दिखता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेट लॉस ऑन द इंच लॉस, देन वो हमारा नहीं होता। तो यहाँ पे पता नहीं होता कि हमारा मसल लॉस हो रहा है कि फैट लॉस हो रहा है, बट वी आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ वेट लॉस ऑन द वेइंग स्केल एंड वी आर वेरी हैप्पी सीइंग दोस नंबर्स। बट क्या आपने नोटिस करा है कि हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा? इफ यू आर डूइंग द वेट लॉस, तो आपका वीकनेस क्यों होनी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट हम जब
प्रॉपरली प्रोटीन्स नहीं लेते तो वीकनेस ज्यादा होती है, एंड हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। वी फील वेरी स्लगिश, वी फील वेरी स्लर्पी, खाने के बाद नींद आती है, थकान लगती है, तो ये हेल्दी वेट लॉस नहीं है। when you are doing a weight loss with the right proteins in your plate, और आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू आर गेनिंग ऑन द मसल्स, दे गिव यू मोर स्ट्रेंथ, they help you in losing the target weight. Target weight means it helps in preserving the muscle mass and losing more on the fat percentage. Up here, fat percentage can come either from the visceral fat, or it can come either from the losing the fat around the different body parts, either your subcutaneous, और या फिर हम बोलेंगे different region में, upper body में किसी किसी के फैट ज्यादा होता है, किसी किसी के नीचे लोअर बॉडी में फैट ज्यादा होता है, तो उसको टारगेटेड वेट लॉस मिल जाता है। नाउ अभी हम कैसे इसको लूज कर सकते हैं, इज बेसिकली द सोर्सिंग ऑफ द प्रोटीन। so how we add lot of sources of protein is very important, because प्रोटीन्स की जब हम बात करेंगे ना, इट हैज द थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑन द फैट। जितना ज्यादा अच्छे आप सोर्सेज ऑफ प्रोटीन सेलेक्ट करते हैं, उतना अच्छा वेट लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया एनिमल प्रोटीन्स लाइक एग, दे हैव ऑल द सोर्सेज ऑफ अमीनो एसिड्स इनसाइड दैट। हर प्रोटीन के बहुत सारे सेट ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई वी से डोंट बी डिपेंडेंट ऑन वन टाइप ऑफ प्रोटीन, कीप ऑन एडिंग डिफरेंट वेराइटीज, ताकि आपको अच्छे से जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अब आप चाहे स्किन की बात करें, हेयर की बात करें, ब्लड कंपोजिशन की बात करें, एवरीवेयर इज प्रोटीन। एंड द मोर यू टेक अ क्वालिटी प्रोटीन एंड विद फिल्ड विद द set of all essential amino acids, you get the better quality of life, as well as you feel more energetic and you feel more healthy from within, है ना। तो ये बेसिक चीज है। अब डेयरी है, पनीर है, ग्रीक योगर्ट है, वे आइसोलेट्स है, दे आर वेरी गुड, एंड दे हेल्प यू इन बिल्डिंग द they help you with the thermogenic effect to burn the fat faster. Next is comes the प्लांट बेस्ड प्रोटीन। दाल है, स्प्राउट्स है, उनको स्प्राउट्स करने से ज्यादा अच्छी एमिनो एसिड की रेंज उसमें आ जाती है, प्लस इट हैज फाइबर एंड प्रोटीन का कंटेंट भी बढ़ जाता है, तो दे आल्सो हेल्प यू इन बर्निंग द फैट मोर फास्टर। अब किसी किसी को गैस्ट्रिक होता है तो वो ब्लांच कर सकते हैं या उसको एक सीटी दे सकते हैं, दैट विल हेल्प इन एडजस्टिंग और डाइजेस्टिंग द स्प्राउट्स बेटर। नेक्स्ट, सोया चंक्स, अगेन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, यू गेट लॉट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम दिस, एंड दे हेल्प यू अगेन इन बर्निंग द फैट फास्टर। प्रोटीन्स ना एक हीट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, एंड व्हेन दे प्रोड्यूस दैट हीट, इट हेल्प्स इन बर्निंग द फैट मोर फास्टर। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से प्रोटीन्स हैव अ थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑन फैट। प्लस आपका हेयर अच्छा हो रहा है, आपका स्किन अच्छा हो रहा है, आपका फैट लॉस अच्छा हो रहा है, एंड your body composition, your blood composition is also improving by gaining on more muscles. Now, these are the simple options which we can incorporate in our diet. अब थोड़ी सी बात करते हैं कि प्रोटीन पाउडर किसी किसी को बाहर का नहीं सूट करता है। So this is a simple recipe. You can take the screenshot of this. Which is a very natural protein powder. रोस्टेड चना लीजिए, सेम क्वांटिटी में यू टेक द रोस्टेड मूंग दाल, रोस्टेड सोया ले सकते हैं, एंड पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, आलमंड एंड पीनट, इन सबको you have to blend them together. I will give you the exact quantity also. इनको blend करके make it a fine powder, and इससे आपको 12 to 18 grams of protein मिल जाता है। आप चाहे इसको अपनी स्मूदी में डाल दीजिए, बटर मिल्क में डाल दीजिए, और अगर इतना भी नहीं करना तो सत्तू is a very simple you know ingredient which provides you a complete protein, तो आप वो ले सकते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट इज कि डेली फाइबर, हमें गट हेल्थ अच्छी रखनी है। आपने डाइट करा, आपने प्रोटीन से वर्क कर लिया, बट इफ यू आर नॉट फोकसिंग जीएलपी से, वन थिंग विच गेट्स लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड इज योर गट हेल्थ। तो वी हैव टू एंश्योर कि हमारे प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स अच्छी क्वांटिटी में है, हमारे गुड गट बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज विच शुड बी देयर इन द इक्विलिब्रियम in a right proportion, that should also be maintained. अब कैसे होंगे ये? चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, दीज आर द डेली फाइबर। ये फाइबर आपको इवन हम छोटी सी लगता है हमें कि ईसफ गोल तो सिर्फ हम कॉन्स्टिपेशन में लेते हैं, बट व्हेन यू टेक द ईसफ गोल, दैट आल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग द good production of these are actually responsible for the good production of your uh,
gut bacteria. तो psyllium husk ले सकते हैं. Oats है. Now I'm not talking about those processed oats available in the market. हम जब oats की बात करते हैं, seal cut oats or the rolled oats, they are really good. Apple helps in, again apple में pectin होता है which helps you in maintaining or meeting up your daily fiber requirement. 25 to 35 grams of fiber we need per day, and that has to be there in all the meals. That's why हम कहते हैं कि सैलेड एक होना चाहिए पर्टिकुलर, बट देन उतना भी सफिशिएंट नहीं होता. चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, साइलियम हस्क है, ओट्स है, बीन्स, स्प्राउट्स करके फाइबर ज्यादा मिलता है, एप्पल से ज्यादा मिलता है, पेयर से मिलता है. तो दिन में एक एप्पल या एक पेयर खाना, छोटी छोटी चीजें ऐड करके we can meet up the basic macros and micros, plus it can help us in also meeting up our daily fiber requirement. Now microbiome booster, तो आपका जो बोलते हैं ना गट है, मेटाबॉलिज्म कहाँ इंप्रूव होता है? मेटाबॉलिज्म लाइज इन योर गट. तो अगर आपने अपना गट को या पेट को साफ नहीं रखा या उसको हेल्दी नहीं रखा, तो वेट लॉस कहाँ से आएगा? डाइजेशन ही नहीं होगा. डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, तो आपका जितना खाना है वो हो जाएगा स्टोर एज अ फैट. तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग द वेट, व्हाट विल हैपन? वी विल स्टार्ट गेनिंग द वेट. इसीलिए थोड़ा सा दही, थोड़ा सा ये सारी छोटी छोटी चीजें, कर्ड है, होममेड पिकल्स हैं, आप छोटे छोटे से क्वांटिटी में पिकल्स ले सकते हैं, कांजी पी सकते हैं, जो हम लोग बीटरूट कैरेट की कांजी बनाते हैं, राइस कांजी बनती है. देन वी हैव काफिर, देन वी हैव कंबूचा, ये सब मार्केट में भी अवेलेबल हैं. गार्लिक हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट टू स्टिमुलेट योर मेटाबॉलिज्म. आप सिंपल सा करिए, आप बस थोड़ा सा गार्लिक को क्रश करिए. डोंट टेक द गार्लिक विदाउट क्रशिंग, बिकॉज उसके अंदर जो कंपाउंड होता है विच इज कॉल्ड एलिसिन, इट गेट्स रिलीज्ड व्हेन यू आर क्रशिंग इट. तो उसको अच्छे से गार्लिक, जिंजर, करक्यूमिन, आपकी हल्दी, इनको हमेशा क्रश करके लेना चाहिए, ताकि इनके जो अंदर nutrients हैं, they get released, and then you can consume them. Onions are very very good to boost your gut microbiome. तो छोटे छोटे से ये ingredients अगर on the daily basis we keep on adding, they also support your weight loss journey by focusing on improving your metabolism. जितना अच्छा खाना digest होगा, जितना अच्छा absorb होगा, उतना ज्यादा fat loss भी faster होता है. Right? Now comes the resistance starch. What supports the gut is the resistance starch. कैसे डेवलप होता है, कैसे मिलेगा? तो आप आज अगर राइस बॉईल करके बनाते हैं, उसको फ्रिज में रख दीजिए 24 आवर्स ठंडा होने के लिए. या बॉइल्ड पोटेटोज हैं, इनको फ्रिज में रख दीजिए. ऐसे दे आर वेरी हाई इन स्टार्च एंड बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आपको वेट बढ़ाते हैं. दैट्स व्हाई वी से ना कि व्हेन यू आर ऑन डाइट, अवॉइड द पोटेटोज, अवॉइड द कॉर्न, अवॉइड द राइस. बट हियर अगर आप उसको कूल करके अगले दिन खाते हैं, फिर से रीहीट करके, तो आपका वो स्टार्च चेंज हो जाता है इनटू रेजिस्टेंट स्टार्च, एंड दैट आल्सो रिड्यूसेस द इम्पैक्ट एंड एक्चुअली हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द वेट लॉस. तो आपका वेट लॉस और अच्छे से होता है. बहुत सिंपल प्रोसेस है. ग्रीन बनाना जो हम केले के कोफ्ते बनाते हैं, बहुत सारे लोग उसकी आलू की सब्जी की तरह से बनाते हैं. दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन स्टिमुलेटिंग योर गट हेल्थ. तो मेन करना क्या है, बॉईल करके इसको फ्रिज में रख दीजिए एंड देन अगले दिन खाइए. बेस्ट वे टू फीड योर गट बैक्टीरियाज. इतने जो हम गट के प्रोबायोटिक्स लेते हैं, लाइक इकोलाई है, एंटेरोजर्मीनिया है, these are all like secondary, but these are the best alternatives जो हम रोज ऐड कर सकते हैं. It's not about adding just for a day, just for 2 days, but every day you can add them and they help you in improving your overall gut. नाउ मॉर्निंग कॉन्स्टिपेशन प्रोटोकॉल. आप सब कुछ कर रहे हैं, बट लेकिन कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस नहीं आएगा. सो कॉन्स्टिपेशन ठीक करना जरूरी है, क्योंकि जितना अंदर वेस्ट है उसको बाहर नहीं निकालेंगे जब तक, तो वेट लॉस कहाँ से आएगा? तो हमारा जितना फाइबर है, दे एब्जॉर्ब ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी एंड उसको फिर फ्लश करते हैं. अगर हमने अच्छे से वेजिटेबल्स ही नहीं खाई, तो क्या होगा? वो हमारे बॉडी में बल्क ही नहीं बनेगा, एंड until unless you create that bulk and the gel, it won't be able to flush out the toxins and the fat from the system. कहाँ से निकालते हैं हम? या तो स्वेट करके बर्न करते हैं फैट, या इट गेट एक्सक्रीटेड थ्रू द bowel, और इट कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन. सो फैट मॉलिक्यूल्स उसमें से it gets passed on from the body. These are the excretory organs, right? And the ways to excrete it. Now what we need to ensure,
पानी जरूर पीना है उठते से। गर्म पानी, मेक श्योर एज सून एज यू वेक अप, इधर अजवाइन का पानी, नॉर्मल वाटर गर्म करके ड्रिंक द ल्यूकवार्म वाटर, ताकि सिस्टम अंदर तक क्लियर हो, है ना। कभी भी हमारे स्वेज लाइन आर लाइक completely clogged up, what we do, we put the warm water, hot warm water, so that it gets clear up with the food का जितना भी तेल है ये सब हमारे बॉडी में रहता है, it will all get cleansed. Second, you can have a serving of kiwi, papaya और prunes. इनको prunes को सोक करके खाइए, उसका पानी पी लीजिए, that will also help you in completely cleansing your system. देन हाइड्रेशन, आप कुछ भी कर रहे हैं खूब अच्छे से पानी पीजिए, यू हाइड्रेट योर सेल्फ। चिया सीड्स ले सकते हैं, गर्म पानी में ही चिया सीड्स 1 चम्मच सोख करके डाल दीजिए। दही या पानी में आप 1 चम्मच psyllium husk सोख करके then you gulp it. That also helps in completely cleansing your gut immediately. कभी constipation हो तो ये ट्राई करेगा, बहुत जल्दी फायदा करता है। Then take a brisk walk, अपना खाना खाने के बाद 10 मिनट इधर उधर वॉक करना, इससे गट स्टिमुलेट होता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गट मोबिलिटी प्लस इनहांसिंग द गट का अपना जो फूड एब्सॉर्प्शन है, दैट टू। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स कम्स इज, अगर तब भी आपको इतना आपका गट ड्राई है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है देयर, internally it has become very dried up because lack of hydration, what we can do is either coconut oil, आप एक गर्म पानी में डाल करके सुबह पी सकते हैं ½ चम्मच, and that not a normal coconut oil, I'm talking about the virgin cooking coconut oil, वो डालिए ½ चम्मच गर्म पानी में, and you drink it, that also completely lubricate your gut lining and helps in flushing out the excreta. Next, squatting position में बैठना। Indian toilets होते थे ना, why they were Indian toilets, there was a reason behind that, so that our knees are, completely strong, plus it also helps in stimulating and lubricating your gut, plus completely increasing the gut mobility। तो वो स्क्वाटिंग पोजीशन में या वॉल स्क्वाट्स करते हैं तो अगेन हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दीज आर द नेचुरल प्रोसेसेस हाउ वी वर्क टुवर्ड्स दैट। नाउ द नेक्स्ट कम्स द सिम्टम्स, why we get nausea, water intake अच्छा नहीं है तो nausea होता है ना। how we can sure, अगर आप जैसे you are on GLP journey, now you are facing certain symptoms, अगर हम इनको address नहीं करेंगे, what will happen, you will continuously find difficulty in losing the weight। तो हमें ये सब फिक्स करना है। how we fix it, ginger is the best way to overcome nausea। थोड़ा सा जिंजर को क्रश करके यू कैन मेक अ टी आउट ऑफ इट, 1 कप, एंड यू कैन ड्रिंक दैट। ज्यादा पानी में भी करके रख सकते हैं, यू कैन कीप सिपिंग दैट आफ्टर द मील्स, डाइजेशन इंप्रूव करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन बर्निंग द फैट। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जिंजर को थोड़ा क्रश करके च्यू भी कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी अल्सर प्रॉब्लम। यहाँ पे ऐसे लोकेशन में जहाँ पे वेदर इतना गर्म नहीं है, बट अभी लाइक मोस्ट ऑफ द इंडिया इज लाइक क्वाइट वार्म एंड ह्यूमिड, सो अभी आप डायरेक्टली मत लीजिएगा, इसको पानी में बॉईल करके इसकी चाय बनाइए एंड यू कैन ड्रिंक दैट, सो दैट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग nausea। नाउ ईट बिफोर बिकमिंग ओवरली हंग्री, एज वी से कि आपने सुबह से सोचा आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, मेरा वेट लॉस अच्छा होगा, डायरेक्टली आई विल टेक द लंच, इट वोंट हेल्प दैट वे। सुबह आप प्रोटीन शेक ले लीजिए, आपको नहीं मन है आप चीला ले लीजिए, स्प्राउट्स ले लीजिए, यू कैन हैव बॉइल्ड चना, सुंदर या मूंग दाल का चीला है, एंड देन यू कैन हैव योर नेक्स्ट मील लंच में। इफ यू कीप योर सेल्फ हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम तो आपके बॉडी में एसिड्स जनरेट होते हैं, दे ऑल्सो क्रिएट द गैस्ट्राइटिस एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू नोजिया। तो वो हमें नहीं करना है। डोंट प्ले विद योर सिस्टम, डोंट प्ले विद योर मेटाबॉलिज्म, लेट इट वर्क स्मूथली, टेक ऑल द मील्स, what we need to focus is the portion control and early meals, having the meals following the circadian rhythm। एंड बीच बीच में आप कोशिश कर सकते हैं कि कीप सिपिंग द फ्लूइड्स, अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं बीच बीच में तो क्या होगा, आपके सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ड्राई हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी करेगा, नोजिया भी करेगा, ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, और ये सारे मिलके अननेसेसरी हमारा जो स्टमक है उसको ब्लेंच करेगा, एंड यू विल फील लाइक कि ना मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग सो डिजीज सो गिडी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेक श्योर दैट यू आर following the basics, which mistakes we have been doing from a long time। Next is always chew your food very well। कभी भी खाने को
निगलना नहीं चाहिए। और या खाना टीवी मोबाइल देखते देखते हम क्या करते हैं, वी गल्प इट, दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। जितना ज्यादा च्यू करेंगे उतना डाइजेशन अच्छा होगा, उतना मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, उतना फैट लॉस फास्टर होगा। तो सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो मेक श्योर। अब इसमें ब्लोटिंग या गैस जिन लोगों को होती है, व्हाट दे कैन डू, मिंट होता है ना, पुदीने के पत्ते आते हैं, तो पुदीने के पत्ते यू कैन जस्ट वॉश इट नाइसली एंड completely either grind it and make it a buttermilk, या फिर उनको पानी में बॉईल करके मिंट टी बनती है, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ब्लोटिंग एंड गैस्ट्रिक इश्यूज। इसमें आप फेनल सीड्स, जो हमारे सौंफ होता है, इसका भी पानी बना के पी सकते हैं। सौंफ एंड अजवाइन का पानी इज बेस्ट। उसको एक बॉटल में डालिए 1 लीटर की, और इसमें डालने के बाद आप उसको पूरा रात भर सोक होने दीजिए। नेक्स्ट डे कीप सिपिंग दैट। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग सोचते हैं हम डाइट कोक ले रहे हैं, ये तो अच्छा है, बट सबसे ज्यादा स्टोन्स की फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा वेट लॉस में डिफिकल्टी, आपके गट को एसिडिक बनाना या आपको नोजिया फील कराने में सबसे इम्पोर्टेंट हाथ होता है आपके ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का। कोई भी, even when they say sugar free, they do have triple the amount of artificial sugar. तो it does disturb the gut microbiota। तो आपको थोड़ा फोकस करना है, ये सब कम से कम लें रेगुलर बेसिस पे। कभी कभार लेने में कोई हर्जा नहीं है, देयर इज नो हार्म इन इट, बट देन इट शुड नॉट बी वेरी फ्रीक्वेंट बिकॉज इट्स अ समर टाइम। उसकी जगह आप अपना कांजी बनाइए, यू कैन गो विद द आम पन्ना, इट्स रियली गुड फॉर द गट। उसमें चीनी मत डालिए। मैं एक जनरली कच्चा आम लेती हूँ, दूसरा वाला एक थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला आम लेती हूँ, उसको एक साथ करके बनाती हूँ पुदीना वगैरह डाल के, एंड इट टेस्ट रियली नाइस। आप ऐसे बनाइए। आप सिंपल सा जीरा वाटर बना सकते हैं, जल जीरा वाटर। यू कैन हैव द फ्रूट्स वाटर, बटर मिल्क कितनी अच्छी चीज है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। सत्तू बनाइए, सत्तू का वाटर, उसमें थोड़ा सा नींबू, नमक एंड भुना जीरा डाल के बहुत अच्छे से आपको सटाइटी भी देता है, प्लस ठंडा होता है तो पीने में भी मजा आता है। अर्थन पॉट के बहुत अच्छे अच्छे अमेजोन पे बॉटल्स आए हैं, वी कैन यूज दैट ऑल्सो। नाउ पूरा डाइजेशन है तो टू इंग्रेडिएंट्स विच कैन never be forgiven is the your jeera and coriander। धनिया, साबुत धनिया, आई एम टॉकिंग अबाउट धनिया सीड्स। तो उनको पानी में उबाल करके जीरा और धनिया को, या कोई भी एक इंग्रेडिएंट, यू कैन जस्ट मेक द डिटॉक्स वाटर एंड कीप सिपिंग दैट थ्रू आउट द डे, या उनको सिर्फ अपने पास रख लीजिए एंड कीप च्यूइंग दैट। दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर toxins and also improving your gut microbiota and enhancing your digestion process। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, जीरा मुंह में डाल दिया या पानी पी लिया। अजवाइन के पेड़ बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, उनके पत्ते धो करके यू कैन जस्ट कीप दैट इन योर माउथ, दैट ऑल्सो वेरी गुड फॉर डाइजेशन। आप सिंपली घर में रख सकते हैं, और एक पेड़ से पता नहीं कितने पेड़ बन जाते हैं उसके। जस्ट प्लग द लीफ एंड द एंटायर लाइक वन बंच ऑफ लीफ, एंड you can just put it in the another pot and you will get one more plant out of it। So as I said, 3 liters से कम पानी नहीं पीना है। It's very important to reduce your appetite। It's also very important to enhance your metabolic rate। And इसमें आप सिंपल चीजें कर सकते हैं। हाँ, कोकोनट वाटर पी सकते हैं वंस अ वाइल। आप हफ्ते में 2 दिन, बहुत सारा बल्क में बहुत सारा मत पीजिएगा, उसमें भी शुगर होती है। बट विदाउट मलाई, अगर आप कोकोनट वाटर पीना चाहते हैं, यू कैन टेक 1 ग्लास अपना या 1 कप। इट विल कीप यू हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द समर टाइम। लेमन वाटर ले सकते हैं विद लिटिल ब्लैक सॉल्ट, स्किप ऑन द your sparkling water you can take once a while। Make sure that you are doing the portion control। Clear soup ले सकते हैं where there is pleasant and you don't have any problem, like Bangalore it's quite pleasant, so soups अच्छे लग रहे हैं अभी, right? So this is one। and next, as I said, like क्या चीजें हिंडर कर सकती है, is your vitamin B12 and D3 deficiency। So देखिए कि आपका when you got the these macronutrients test done, तो B12 and आपका D3 and iron, so ये सारे टेस्ट करने बहुत जरूरी है। इनका टेस्ट जरूर करिएगा। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, चेक योर D3 लेवल, B12 लेवल, आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन कितना है, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है। क्योंकि अगर ये कम होंगे तब भी आपका फूड कंजम्पशन कम नहीं होता, एपेटाइट कम नहीं होता। नो मैटर वी आर टेकिंग GLP एंड डूइंग वॉट एवर, बट दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी
इंटैक्ट इन प्लेस। अभी B12 की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेवल्स होते 250 से लेके 900 तक, मेरा 250 है, तो इट्स ऑन द बॉर्डर स्टिल, राइट। आप इसको 350 400 तक एटलीस्ट मेंटेन करिए, देन सी आपका ब्रेन कितना शार्प चलता है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स कितनी अच्छी आती है, योर बॉडी हील फास्टर, इट बर्न्स फैट फास्टर। तो ये बहुत सिंपल से वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमें लगता है कि नहीं इसमें क्या ही इतना है, कम है तो क्या ही हो जाएगा, बट दे ऑल्सो आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट लॉस। नाउ फूड ट्रिगर्स, हम ज्यादा फ्राइड खाएंगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, तो दे विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग द क्रेविंग एंड मेकिंग द वेट लॉस जर्नी मोर डिफिकल्ट। इसकी जगह आप क्या खा सकते हो? आप पनीर ले सकते हो, पनीर टिक्का बना सकते हो घर में। इफ वंस अ वाइल लाइक वीकेंड पे यू वांट टू ईट समथिंग अनहेल्दी, और you want to indulge in something, then roasted chana and babe hai this really good, it's a very good snacking option. Sugary beverages की जगह, ऐसे मैंने अभी बताया, you can make smoothie, you can make yogurt, you can also go with the आम पन्ना and अपने देसी options। लार्ज रेस्टोरेंट्स में जाने के बाद स्पाइसी फूड खाने से एसिडिटी लेवल बढ़ जाती है, एंड देन ऑल्सो द वेट लॉस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ना हमें लगता है कि हमने ना ग्रिल्ड खाया, रोस्टेड खाया, but they do have the oil in it. They do use lot of refined flour, मैदा की कोटिंग करके बनाते हैं। they soak it in the oil ताकि अच्छे से उसका टेस्ट इनहेंस हो, जितने भी स्पाइसेस है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो कभी कभार खाने में कोई हर्जा नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल। उसकी जगह पनीर क्यूब्स है, बॉइल्ड एग्स है, टोफू खा सकते हैं, राइट। One thing very important, that alcohol should be consumed in smaller portion and very mindfully. Otherwise, it also nullifies the effect of the GLP. तो आपका जो क्रेविंग कम होने का होता है वो नहीं आता है। इट ऑल्सो ट्रिगर्स द नोजिया, वॉमिटिंग। तो ये हमें वी नीड टू डू फोकस ऑन दिस, सो इसको हम भूल नहीं सकते, राइट। भी ब्रेकफास्ट की बात करें तो क्या क्या खा सकते हैं? वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हैं, वी कैन गो विद द बेसिक चीला। हाई प्रोटीन स्मूदी है, स्प्राउट्स खा सकते हैं, मुरादाबादी मूंग दाल खा सकते हैं, एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस यू कैन गो विद। मिड डे की बात करें तो यू कैन गो विद ग्रीक योगर्ट बोल विद फ्रूट्स एंड नट्स। इट्स नॉट दैट कि 3 ही मील्स खाने हैं, 2 ही मील्स खाने हैं, इट्स अप टू यू हाउ मच एक्टिविटी यू आर डूइंग। जो लोग ज्यादा वर्कआउट्स कर रहे हैं, दे नीड दिस मच ऑफ एनर्जी, राइट। आफ्टरनून की बात करें तो पनीर है, वेजिटेबल्स है, पोर्शन कंट्रोल में यू टेक द क्वांटिटी ऑफ 1 कटोरी ऑफ मिलेट, कुक्ड मिलेट, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ मत कराए, ग्रीन टी या नॉर्मल टी without sugar, yeah, you take monk sugar in that and take the sprouts along with that. It will not hamper your weight loss journey. It's just about being mindful. It's just about making the right choices. Night dinner always before 8 o'clock, never after that, right? वरना वेट लॉस नहीं होता है, वो सारा फूड गेट स्टोर्ड ऐसे ही एज अ फैट। तो क्लियर फूड, सूप है, आप सूप ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, उसके साथ कभी चीला ले सकते हैं, वी कैन मेक kebabs. So try to just be very mindful and creative with the options that we can choose. I think I have already shared a lot of recipes with you people in the previous session, so we can go with that. Now, unlearning the dietary myths, as we said, that you should only eat salads to lose weight. No, you have to eat salads, but along with that, your proteins and carbohydrates also have to be there in the meal. Now, second is, we need to ensure that why we cannot only rely on the salads, because it lacks proteins. So we start getting muscle loss. Next is, high protein damages the kidney. I have heard multiple times people coming to me and saying कि नहीं हाँ, प्रोटीन पाउडर लूंगा तो मैं मेरी किडनी डैमेज हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। व्हाई? आप अगर प्रोटीन पाउडर फ्लेवर्ड्स वाले लेते हैं जिसमें कि इतने एडिटिव्स है, देन आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। बट अगर आप हेल्दी राइट प्रोटीन पाउडर ले रहे हो विच इज अनफ्लेवर्ड, हैज लीस्ट एडिटिव्स, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। You can create your own protein powders also at home. And if anyone has a kidney issues like artificial, like they have undergone the kidney transplant, or yeah, they have damaged kidneys, in that scenario, yes, we have a restriction for protein intake. But
any normal human being or anyone who's looking for the weight loss, they have to take a good amount of protein, and that too is 1 to 1.5 at least per kg body weight. We cannot compromise with that, right? Avoid all carbohydrates. So when we say no, definitely not, we have to just avoid too much of simple carbs, like बहुत ज़्यादा fruits, स्वीट्स है हम नहीं खानी चाहिए. सिंपल हमारे जो कैलोरीज आते हैं विच इज फ्रॉम द एम्प्टी कैलोरीज फ्रॉम योर सिंपल कार्ब्स, लाइक आपके कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है, दैट शुड बी अवॉइडेड. बट स्मार्ट कार्ब्स विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लाइक लेंटिल्स हैं, आपकी दालें जो होती है उसमें लेंटे कार्ब्स होते हैं, तो यू डू हैव द कार्बोहाइड्रेट्स इन दैट. आपके वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. आप रागी की बात करें या ज्वार की बात करें, दे टू आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, so they are essential and we need them for the good healthy gut microbiome health, right? Now skip meals to accelerate weight loss, it's a big no no, please never do that mistake. If you're not hungry, that's another case, but intentionally missing on the meals, skipping them will make your gut more sluggish and your weight loss journey will become much more difficult, right? Now, when to contact your doctor immediately. You should be aware about this, that whenever you have unmanaged, manageable, like, abdominal pain, you're constantly feeling vomiting, or there is, inability to drink water, पानी पीने में भी लग रहा है कि बस vomiting हो जाएगी, या बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाती है, प्लीज मीट द डॉक्टर इमीडिएटली. सीवियर कॉन्स्टिपेशन लास्टिंग मोर देन 3 to 4 days, अगर 4 दिन से ज्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स विच आई शेयर टुडे, कि वाटर अच्छा होना चाहिए, फाइबर अच्छा होना चाहिए, प्रोबायोटिक्स होने चाहिए डाइट में, रेजिस्टेंस स्टार्च होना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, इट्स नॉट गुड. ब्लड्स इन द स्टूल अगर दिख रहे हैं आपके इमोशंस में, then also you should immediately contact the nearby doctor. No, don't wait for sugar fit doctors because they are not available on emergency service. You should immediately, you do inform the coach regarding that, she will reach out. But then kuch emergency hai, तो we should always go to the emergency service, right? Signs of repeated or severe dehydration kabhi ignore mat karega. Dull skin, pale skin, you should always ensure that you are hydrating yourself pretty well, right? Now, as I said, quick recap: protein at every single meal, hit 25 to 35 grams of fiber daily, hydrate at least 3 liters of water. It should come from, buttermilk hai, pani pee liya, sattu ka drink le liya. These are all simple, like, hydrating ingredients. Now, eat small every 3 to 4 hours. बहुत ज़्यादा बड़े बड़े meals खाएंगे, digestion नहीं होगा, already आपका metabolism slow है. So, break them into small and frequent meals. Chew your meals, every single morsel, every single bite. Chew the food nicely. Avoid watching the TV or mobile while eating, because that will make you do the emotional eating, and you don't chew the food, then the digestion won't happen and again get stored as a fat. Simple mistakes, छोटी सी चीज है, but वेट लॉस नहीं आता. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू प्रिजर्व मसल्स, आप जब भी जीएलपी पे हो या नॉर्मल वेट लॉस भी कर रहे हैं, मेक श्योर एटलीस्ट वीक में 3 days तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें. इट डजेंट मैटर, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द डंबल्स. आप थेराबैंड लेके कर सकते हैं, आप अपने बॉडी वेट को यूज करके, प्लैंक है, माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, शोल्डर टैप्स हैं, यू कैन डू ऑल दीज एक्सरसाइज विच itself it's very very helpful in burning the fat and also gaining the muscle mass. Now strength. Next is the sleep. Your sleep has to be 10 o'clock to 2 o'clock is the major time that your body detoxifies and burns the fat. तो प्लीज 10 बजे से सुबह 6 या 7 बजे की नींद, at a stretch, uninterrupted sleep. At a stretch, we have to ensure that we are sleeping at, for complete 6 to 7 hours at least. इसके बिना तो मतलब कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, वेट लॉस नहीं आता जो लोग सोते नहीं है. नेवर इग्नोर डाइजेस्टिव सिम्टम्स. कॉन्स्टिपेशन है, नोजिया है, एसिडिटी है, इनको कभी इग्नोर मत करेगा. ऑलवेज एड्रेस देम, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है. इतना ज्यादा गैप देंगे, स्किप करेंगे मील्स, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को फर्दर ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है. नाउ विच न्यूट्रिएंट प्रिजर्व मसल मास ऑन जीएलपी इज द प्रोटीन. वी कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विद दैट. व्हाट इज द आइडियल सीक्वेंस फॉर ईटिंग अ प्लेट. इट्स ऑलवेज लाइक हमेशा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, सबसे पहले वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स एंड देन कार्ब्स. कभी वेजिटेबल्स नहीं है, आप साइलेंट हस्क लीजिए, ये सब गोल लीजिए, 1 ग्लास पानी में मिक्स करिए 200 ml वाटर में, एंड देन यू कैन कंज्यूम दैट. एंड विच हेल्प्स significantly helps in reducing the nausea is your ginger. So we have discussed that and I'm just reiterating once again. Now comes the very important aspect कि कौन से ऐसे food हैं
जो हमें वेट लॉस स्मूथ करते हैं, हमारा फास्टर करते हैं। डेफिनेटली प्रोटीन की बात कर ली, गट हेल्थ, जितने भी हमारे प्रोबायोटिक्स हैं उनकी बात कर ली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एप्पल साइडर विनेगर दे ऑल्सो इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म। कैसे करता है? मैजिक नहीं है। दे क्लिनज योर ब्लड। आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, आपके ब्लड में हाई यूरिक एसिड है, आपके ब्लड में बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स, the three compounds of carbohydrates है. So how we can clean it is by consuming apple cider vinegar. They cleans your blood, help you in improving the metabolism. बहुत सिंपल सी चीज़ है, दिन में एक बार किसी भी खाने से पहले हम ले सकते हैं. Take 200 ml of water, add 2 teaspoon of apple cider vinegar with mother culture, right? Never take without mother culture. It's waste. It's of no use. And then you can drink it. Always drink it with the steel straw. स्टील स्ट्रॉ से पीने से आपके जो टीथ है उनका एनामल खराब नहीं होता है. कैन वी हैव एसीवी विद जीएलपी? यस, यू कैन हैव इट प्रतीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वंस अ डे. बट जिस टाइम आप मेडिकेशन ले रहे हैं उस टाइम मत लीजिए, यू टेक इट एट द नाइट. और अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा है या यू हैव द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, यू शुड अवॉइड. ठीक है? जिनको पाइल्स है, जिनको गर्ड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज है, या जिनको बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होता है गट में, या बॉडी बहुत सेंसिटिव है, हीट ज्यादा जनरेट होती है, देन यू शुड अवॉइड एप्पल साइडर विनेगर. इट कैन लीड टू लिटिल बॉयल्स ऑन योर स्किन. अदरवाइज जिनको सूट करता है, जिनके नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल कोई ऐसे उनको हेल्थ इश्यूज नहीं है, यू शुड ऑलवेज गो विद द एप्पल साइडर विनेगर. Another thing that also helps in stimulating your weight loss is your probiotics. So please never forget about it. आप चाहे सिंपल सी कांजी बनाइए, सिंपल सा आप जो है दही में अपना चिया सीड्स डाल के, दिस इज अ वेरी सॉलिड कॉम्बिनेशन. कर्ड इज ऑल्सो अ प्रोबायोटिक एंड योर चिया सीड्स इज अ प्रीबायोटिक. ये दोनों जब मिलते हैं ना, इतना सॉलिड प्रोबायोटिक गट फूड बनाते हैं that it will fix your all the metabolic related issue and the constipation, और कैसे भी आपको digestive issues हो, it will completely fix that up. ठीक है? तो ये बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस करी हैं, जिससे आपका वेट लॉस और बहुत अच्छा होता है. बट एक चीज और मैं बोलूंगी, नेवर एवर फॉरगेट अबाउट विटामिन D3. अगर D3 कम होगा, B12 की डेफिशिएंसी होगी, वेट लॉस नहीं आएगा. तो इन सब पे एक्स्ट्रा एम्फसाइज करिएगा. Thank you, Sushant. So I am ready to take up the questions. We are uploading all these sessions in the YouTube also. You can take it up every anytime.